So, student, this is lecture 19, and in this lecture, we are going to discuss about the accelerometer. Okay, so use of proximity sensor as a accelerometer. Okay, so let's start with the some points regarding this accelerometer. So, whenever we talk about the acceleration, okay, so acceleration का मतलब क्या है? Means if you have the known value of x, ओके डिस्टेंस अगर आपको पता है, पोजीशन पता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ इट. ओके, सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट नोट इट डाउन. First point is most vibrations. If I talk about the vibrations, are sinusoidal displacement of an object about its mean position. Okay, so whenever you talk about this vibrations, why I am discussing about this vibrations. So most vibration are sinusoidal. Is okay, because अगर आपके पास if I talk about this vibrations, so vibration की अगर हम बात करें, they are some they are like oscillations. Vibrations are oscillations. So oscillation means like in this way. Okay, so whenever we talk about this oscillation, okay, so always we talk about the mean position. So suppose this is a mean position. Okay, so इस mean position की क्या होगा, up and down होगा, and always it is a form of the sinusoidal. Okay, so if you are capable to measure this value, okay, in other words, अगर आपको ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स कि ये वैल्यू पता चल गई कि कितना वो अप जा रहा है और कितना डाउन जा रहा है. ओके, लाइक वी हैव इन दिस फॉर्म, और लाइक इफ वी हैव ऑसिलेशन इन दिस फॉर्म. ओके, ओके, वर्टिकल उसके अराउंड है. तो दोनों केसेस में इफ यू फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके, सो एक तरह से क्या, अगर आप वो डिस्टेंस, अगर वो पोजीशन मेजर कर लो, तो यू कैन मेजर द वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, बट वो क्या हो रहा है, बहुत क्विकली हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है. ओके, so just like whenever we talk about the your earthquake, so earthquake nothing else is vibrations. Okay, so अगर आपने देखा होगा जब भी वाइब्रेशंस आते हैं, so we have one graph over there like ऐसे से, ठीक है. so these are the vibration कि अप एंड डाउन कितनी वैल्यू हो रही है. so basically अगर हमें वो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, वो पोजीशन पता चल जाए, so we can easily measure the vibrations. और एक बार अगर आपको वाइब्रेशंस पता चल गए, मींस मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव रिटन दिस इक्वेशन x इक्वल टू a sin omega t. okay, so where this a is the amplitude, omega is the your frequency,
angular frequency. Okay, so if we are capable to calculate this value x, you can easily calculate the value of the acceleration. Okay, if x is known, v equal to क्या होता है dx by dt, and whenever you talk about this acceleration, you can easily calculate this value. Okay, so from here you can get the idea कि अगर acceleration हमें measure करना है, then we have to focus this x value. Okay, so हमारा जो main motive है वो क्या है, इस x को calculate करना. Okay, so let's draw one diagram over here. So I'm just going to draw one diagram or measurement of the vibrations. Okay, so basically in this lecture 19, okay, we have to measure the value of the acceleration. In lecture number 20, we have to measure the value of the vibrations. Okay, so if we are going to calculate this vibration, you can easily calculate the value of the acceleration. Okay, so for acceleration, okay, I'm just going to draw one diagram over here. So just please draw. So we have one housing frame is over here. Okay, okay, and in this housing frame, sorry, we have one damper over here. And this damper is connected with the one seismic mask and one spring is attached over here. Okay, so this is damper, this is spring, and this is your okay. So one seismic mass is over here. So मैं इसे m से represent कर देता हूँ. Okay. Now for measurement of this displacement, I have connected one displacement transistor over here. I'm just writing the directly displacement transducers. Okay. So you have been read about the enough uh, read about the measurement of the position or displacement. So आप कोई भी arrangement यहाँ पे लगा सकते हैं. Okay. And this is your housing, means जहाँ पे आपने ये arrangement किया है. Okay. So this is the arrangement. Okay, यहाँ से क्या करना है, we have to measure the value of the accelerations. अब हमारे पास एक ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है. क्लियर?
सो ये इंस्ट्रूमेंट क्या क्या करेंगे, वी हैव टू कनेक्ट दिस ऑन द जहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मेजर करना है, वहां से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉक्सिमिटी सेंसर, आपका टाइटल क्या था, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एज ए एक्सेलरोमीटर। ओके, सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मतलब क्या था, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, सो आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये अरेंजमेंट कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना, सो लेट्स सी देयर इज अ चेंज, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2t और यहाँ पे स्प्रिंग में x1t। ओके, सो हमारा फोकस क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ x। कुछ x1 में चेंज हो रहा होगा, कुछ हमारा x2 में चेंज हो रहा होगा, और इसको ही क्या करना है, हमें मेजर करना है। क्लियर? सो फॉर मेजरिंग दिस पोजीशन, सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये मेजरमेंट जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा कि जैसे ही हमारे पास इसको जर्क लगेगा, वाइब्रेशन मतलब क्या है, ये जो हमारा सिस्टम है इस पे जर्क लगेगा। ठीक है, या कोई इस पे फोर्स एकदम से लगा के हटा लेगा। तो ये जो स्प्रिंग लगी है, यू कैन सी हियर स्प्रिंग इज अटैच्ड ओवर हियर, सो इसकी क्या होगा, इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होंगे। ठीक है, ये डैम्पर क्या करेगा, यहाँ पे डैम्पर का मतलब देयर इज वन करेक्टिविटी, इस पे जो भी फोर्स जा रहा होगा यहाँ पे इसे प्रेस करने को, वो उसे स्टॉप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो इसका मूवमेंट अप एंड डाउन होगा स्प्रिंग का। जैसे इस पे जर्क लगा, ये हमारा सेस्मिक मास है, इसमें एक्सेलरेशन हुआ और ये मूव करने लगा। सो जैसे ये मूव करेगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट सेंसर हमने लगा रखा है, ओके, दैट विल रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और जो भी पोजीशन उसकी चेंज हो रही है वो ये मेजर करेगा। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन यू कैन यूज द योर LVDT आल्सो ओवर हियर। LVDT से हम क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे पोजीशन, सो यू कैन यूज द LVDT अरेंजमेंट ओवर हियर। सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। सो आप जो भी यूज करना चाहते हैं सेंसर, आप उसको यूज कर सकते हैं। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द xt और xt। okay, why I'm writing this xt, because there is change in x2t also is and x1t also। ओके, कुछ चेंज हमारा स्प्रिंग में होगा, कुछ मूवमेंट हमारा क्या होगा, मास में होगा, क्योंकि सेस्मिक मास है, तो सेस्मिक मास मींस वहां पे कुछ एक्सेलरेशन हो रहे होंगे प्रॉपर्टीज में। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, एक आपको फाइनली डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दे देगा। सो जनरली वो क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू नहीं दे रहा होगा, वो आपको क्या दे रहा होगा, एक वोल्टेज दे रहा होगा। ओके, और उस वोल्टेज को हम कैलिब्रेशन किस में करते हैं, V एंड X में। ओके, सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, इफ यू दिस xt इज नोन, ओके, सो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, dx by dt, that will give you the velocity, and जब आपको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे, that you will get the acceleration। okay, so in this way we can calculate the this displacement or position। okay, or in other words you can measure the vibrations। ठीक है, now why I'm talking about the, क्योंकि जो x आ रहा होगा उसे आप t से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dx by dt करेंगे, it will give you speed। okay, velocity की किस velocity से वो up and down हो रहा है। okay, and again when you differentiate again, it will give you the acceleration। okay,
Now if you want to this arrangement as a proximity sensor, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एज ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर बनाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपसे बोलता हूँ यू हैव टू मेजर द वाइब्रेशन ऑफ द योर इंजन, ओके, सपोज यू हैव 4 व्हीलर और उसका जो इंजन लगा है उस इंजन के आपको वाइब्रेशंस मेजर करने हैं कि क्या वाइब्रेशंस उसमें आ रहे हैं, ओके। सो रादर देन कनेक्टिंग दिस इंस्ट्रूमेंट at the top of the engine, you have to connect this arrangement at the your bonnet, ओके। क्योंकि जो भी वाइब्रेशंस आ रहे होंगे, बोनट आपका डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, इंजन से, इंजन उसके अंदर ही रखा है, जो फ्रेमिंग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे, बोनट से। सो जस्ट पुट दिस इंस्ट्रूमेंट एट द बोनट एंड इट विल गिव यू द वाइब्रेशंस, ओके। एंड ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, so let me remove this thing. I'm just removing this, all these things. Okay, so obviously अगर मैं बात करूं कि कैलिब्रेशन आप कैसे कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ से जो भी जनरेट हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, इट विल जनरेटिंग वन वोल्टेज होगा, okay. So for calibration obviously you have required amplifier, okay, because whatever is value is you are getting is in millivolt, okay. So you have to amplifier over here to amplify this value. Then you have required for signal conditioning, okay. So signal conditioning just for the your calibration. Then you have required to display your result, okay. So अगर देखा जाए you are doing the calibration between the your your voltage and your x, okay. So whenever you get the x, you can easily calculate the value of the acceleration, okay. So this is all about your accelerometer.